welcome back to our topic of this series of immunology, and that's why I found this is a very important topic to discuss with all of you guys, that is about cytokines. So from this starting of this topic, I think it is very important to make you highlight about one of the thing, that cytokinin. Cytokinin, you don't have to think about anything because cytokinin is a kind of a plant growth hormone. Like in our body also we have different growth hormones required for the growth and regulation of the different growth factors. Similarly, in plant, cytokinin is a kind of a plant growth hormone. Name may be similar. One is inin and is ines. So on this basis, we have differentiated it. So there may be chances that you may get confused with the terminology because in biology it is very difficult to understand and remember those names because they are more or less similar. So that respect I highlighted this point. So keep it in mind. This is not something we need to focus about. Our topic is about cytokines. So cytokines are basically some molecules. These are low molecular weight, soluble proteins and non-immunoglobulin in nature. Their molecular weight, as I mentioned here, it is less than 30 kilodaltons, very low, very small and molecules. These molecules are ideally important because they provide a guidance for the cells to move into the site of their production. I'll slowly, gradually, when I will come to here, you will be able to understand the concept. These are secreted by the immune cells. Body के जितने भी immune cells है, हमने पहले पढ़ा innate and adaptive immunity. तो innate and adaptive जो immune system होते हैं उसके अंदर बहुत सारे cells और organs मिलके एक system बनाते हैं. तो हर एक cells जो है immune system के part है वो cytokines release करते हैं. अब किस type के करते हैं? जैसे monocytes, macrophages, neutrophils, dendritic cells. Generally these kind of cells secrete cytokines. Provided also certain epithelial cells, endothelial and fibroblast cells जो non-immune cells होते हैं ये भी generate करने में मदद करते हैं. So you can get a question from this part that which of these cells which are non-immune cells but they can also secrete cytokines when there is an infection in your body. That is your endothelial or and also epithelial cells as well as fibroblast cells. Next topic is about the types of cellular communication, which is very important to know in this particular aspect. See, we have three terminals called autocrine, paracrine, endocrine. So how these names have been given, it is depending upon the spatial location of the cytokine responding cell. मतलब कि जो cell cytokine जनरेट कर पाते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उस हिसाब से हमने नामकरण किया है. ऑटोक्राइन की बात करते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ. सो ऑटो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म ऑटो मीन्स सेल्फ. सो द सेल्फ इज प्रोड्यूसिंग इट. जो सेल प्रोड्यूस करेगा उसी सेल के अंदर सिग्नलिंग चलेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन. बहुत सारे सेल्स इस टाइप के सिग्नलिंग पाथवे जनरेट करते हैं. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द पैराक्राइन. पैराक्राइन इज ऑलवेज बिटवीन टू सेल्स. दो सेल्स के बीच में, जैसे ये एक सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 नेबरिंग सेल्स है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा आपके और आपके नेबर के बीच में, जो भी टाइप के इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन होता है हम उसको पैराक्राइन के नाम दे देते हैं. थर्ड टाइप इज एंडोक्राइन. वेरी सिमिलर. एंडोक्राइन जो शब्द है ये हम बहुत सिमिलर होते हैं स्पेशली बायो स्टूडेंट्स को, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स और ये जो चैप्टर है टोटली ये जब एक बॉडी के एक शरीर से आपके मुंह से आपके पेट तक या फिर आपके मुंह से आपके लीवर तक या फिर आप किसी और पार्ट तक जो इतनी लंबी डिस्टेंस को सफ़र करनी होती है, मतलब डिस्टेंटली लोकेटेड कहीं पे हमें जाके पहुंचाना होता है थ्रू सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन. सो ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पे हमें पहुंचाना है, क्या हमें उसी सेल के अंदर पहुंचाना है, क्या हम दोनों सेल्स बहुत क्लोजली लोकेटेड है उस पर पहुंचाना है, या फिर दो अलग अलग सेल जो बहुत दूर लोकेटेड है उससे पहुंचना है, उसके हिसाब से हमने सिग्नलिंग पाथवेज को अलग अलग नाम, अलग अलग मैकेनिज्म के वे से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया. ये जो साइटोकाइंस की बात करते हैं, साइटोकाइंस वो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आप कहीं नई जगह पे जाते हो, वहाँ पे आप गाइड की ज़रूरत पड़ता है. क्यों? ताकि आपको समझ पाओ उस जगह के बारे में और जानकारी मिले आपको उस जगह पर. दिस साइटोकाइंस विल बी एक्टिंग लाइक अ गाइड फॉर हुम, फॉर द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. तो ये जनरली हार्मोन जैसे ही प्रकार के होते हैं बट ये हार्मोन्स नहीं होते. वो हम देखेंगे कि क्यों ये हार्मोन्स नहीं होते, हार्मोन्स जैसे होते. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो कि ये बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते हैं इवन एट अ वेरी लो मोलर कंसेंट्रेशन. फेम्टोमोलर कंसेंट्रेशन आप लोग अगर पता होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना. बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ योर 1 × 10⁻⁻15 के मेजर पे हम जो भी कुछ मेजर करते हैं दैट इज फेम्टोमोलर. तो इतने छोटे होते हैं, समझ सकते हो कि इतने कम कंसेंट्रेशन पे भी ये बहुत एक्टिव होता है. जैसे कि हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स भी इतने कम कंसेंट्रेशन में बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते हैं. नाउ
So this growth hormone as we're discussing, it is produced constitutively, मतलब चाहे आपके शरीर में कोई स्टिम्युलस की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये प्रोडक्शन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड साइटोकाइन या हॉर्मोन्स का देखा जाए तो ये कभी स्टिम्युलस मिलता है तो ही आपके प्रोडक्शन होता है। सेक्स हॉर्मोन्स का भी इसी तरीके से काम है, जब स्टिम्युलस एक्सटर्नली मिलते हैं तभी ये जनरेट होंगे। सिमिलरली साइटोकाइन, जब कोई इन्फेक्शन हुआ, पैथोजन एंटर किया बॉडी में, एक जनरेट हुआ कि आपका साइटोकाइन प्रोडक्शन होना ज़रूरत है, तभी ये प्रोड्यूस होगा। साइटोकाइन्स की देखा जाए, आप डिफरेंट साइटोकाइन और हॉर्मोन्स का हम देखेंगे। ग्रोथ के साथ इन दोनों का बस इतना ही एक ही पॉइंट है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब जो सेकंड पॉइंट है कि साइटोकाइन्स छोटे डिस्टेंस पे, आपने देखा है बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस, चाहे इंडोक्राइन बहुत कम रेयर केस में होता है। जनरली साइटोकाइन आपके शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। दे जनरली एक्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इन ऑटोक्राइन और पैराक्राइन फैशन। ऑन दी अदर हैंड हॉर्मोन्स काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन फैशन। और रादर साइटोकाइन्स बहुत सारे सेल्स इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी इम्यून सेल्स, नॉन इम्यून सेल्स, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और इसके जो काम जिस तरीके से वो बाइंड करता है वो भी बहुत वाइड वैरायटी रेंज पे होता है। ऑन दी अदर हैंड हॉर्मोन्स जो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गैन होता है, वहाँ से ही प्रोडक्शन होता है और टारगेट सेल पे जाके काम करता है। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड वे से हॉर्मोन्स काम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइटोकाइन्स आर नॉट दैट मच स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड। सी, जो साइटोकाइन्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो बाइंडिंग करते हैं, मान लीजिए आपका टारगेट सेल ये है, ये कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई आपके शरीर के अंदर का कोई ऐसा हिस्सा हो सकता है जो आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, इसका बोलते हैं एंडोजीनियस एंटीजेंस। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे एक्सोजीनियस एंडोजीनियस क्या होता है। तो जैसे कि ये शरीर में घुस गया तो इसके बीच में तो एक इंटरेक्शन होगा। ये जो साइटोकाइन के ऊपर, ये साइटोकाइन एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी रिसेप्टर्स बने होते हैं। ये रिसेप्टर्स देखने में कुछ इस तरीके से होता है, जो मैंने डायग्राम बनाया। ये रिसेप्टर इस तरीके का होता है, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देख रहे हो ये जो दो लेयर्स है ना, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसके अक्रॉस दी मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रोटीन, ये इसके एक्सटर्नल पार्ट बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, इसके इंटरनल पार्ट जो सिग्नलिंग जनरेट करते हैं। तो ये जो आपका है ये रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर के साथ ये टारगेट सेल, जब टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ जो बाइंड होता है, ये बाइंडिंग के साथ साथ ये बहुत ही एक हाई स्पेसिफिसिटी, हाई एफिनिटी वाला बाइंडिंग होता है। इसके साथ साथ यहाँ के जो रिसेप्टर है, आपको जो यहाँ के आपको मैंने रेड कलर में शो किया है, ये जो रिसेप्टर्स है, दिस रिसेप्टर्स विल कन्वर्ट द एक्सटर्नल सिग्नल, ये जो साइटोकाइन से जो एक्सटर्नल सिग्नल मिलेगा, इनटू एन इंट्रा सेलुलर बायोकेमिकल सिग्नल, सो दैट कि चलो जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दिया जाए और आगे के प्रोसेसिंग में चला जाए। तो ये आपका ओवरऑल एक सिनेरियो है साइटोकाइन्स का। जनरली 100 प्रकार के साइटोकाइन्स हो सकते हैं, उनमें से हमने डिफ्रेंशिएट किया, हम कुछ ही पढ़ेंगे जो सबसे वाइटल मोस्ट है। देखिए उसका नामकरण जो है ना, 2 अलग अलग प्रकार से किया गया है। एक कहाँ से जनरेट हो रहा है, दूसरा क्या उसका फंक्शन है। जहाँ से बनता है लिम्फोकाइन्स और मोनोकाइन्स कहते हैं। लिम्फो इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी लिम्फोसाइट्स, मोनोकाइन्स फ्रॉम बाय दी मोनोसाइट्स। तो इसलिए हम उसका नामकरण कहाँ से वो प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से इसका नाम हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शन जो हम इन डिटेल लाइक एक एक करके हम पढ़ेंगे, दैट इज योर इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन एंड केमोकाइन्स। इसके फंक्शन बहुत ही वाइब्रेंट और डाइवर्स है। टॉकिंग अबाउट फर्दर, साइटोकाइन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज: hematopoietins, chemokines, interferons, interleukins and the members of the tumor necrosis factor family। इसको हम पूरे वेल डिफाइंड एक दूसरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें इंडिविजुअली एक एक करके इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, हेमाटोपोइटिन्स, केमोकाइन्स और ये सब कुछ एक एक करके देखेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम रोल ऑफ साइटोकाइन्स पढ़ेंगे। ओवरऑल आपको समझ आ गया, एक सेल के साथ दूसरे सेल के कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से इनका रोल प्ले होता है। केमोटैक्सिस में बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, एंटीवायरल डिफेंस, इम्यून एक्टिवेशन, ये सारी इसके ओवरऑल मैकेनिज्म। बेसिकली एक साइटोकाइन चाहे कितने भी छोटा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, जो लेस देन 30 किलो डाल्टन के एक मॉलिक्यूल हो, बट इसकी काम बहुत इफेक्टिव है, दे इफेक्टिवली वर्क। एंड इसके प्रोडक्शन के थ्रू ही आपका इम्यून सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा, कोई इन्फेक्शन हुआ, ये टोटली डिपेंड करता है। सो साइटोकाइन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज गो थ्रू द टॉपिक एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड forward this video to your friends. Thank you so much.